how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 8, that is log on to Animate CC. In this chapter we are going to study about the introduction to Animate CC. Then we are going to study about how to start Animate CC and Animate CC workspace, and how to use tools panel, how to create a document in the Animate CC, how to use frame by frame technique for animation, and last one is animating an object, how to animate an object. So let's begin. What is Animate CC? Adobe Animate CC is one of the software that can use to create animated movies and games. ये ऐसा सॉफ्टवेयर है Adobe Animate CC हमारा, जो एक किससे यूज होता है, मूवीज एंड गेम्स को एनिमेटेड क्रिएट करने के लिए. Using Animate, one can combine images, audio, video and other effects to create animation. So ये Animate को use करके क्या कर सकते हैं, combine कर सकते हैं audios को, videos को and other effects को create करने के लिए animation. So the animation and graphics created in Animate can be scaled to any size. जो animation create होता है, graphics create होता है, इसके ये scale हो जाता है किसी भी size में, compromise करे बिना उसको clarity, compromising its clarity and quality. उसकी quality और clarity का एक insect प्रति है. Now how to start Animate CC? ऐसा start करते हैं. To start Animate CC, follow the given steps. First आपको click करना है start button पे, then Adobe Animate CC पे click करना है. Adobe Animate CC welcome screen appear हो जाएगी. Screen इसमें 4 panels आते हैं इसमें. So open recent, create new, introduction and learn. 4 panels आ गए. So all the common tasks like creating a new document, जो common task होता है, जैसे आपका create हो गया new document को create करना हो गया, opening recently used files and using pre-built templates can be done using this preview. ये चीज़ है किससे हो सकती है, इस स्ट्रीम को यूज करके. सो अंडर द क्रिएट न्यू सेक्शन सेलेक्ट करना है आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को. सो अ न्यू ब्लैंक फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी. Adobe Animate CC was developed as a replacement of Adobe Flash series. डेवलप होता है किसके रिप्लेसमेंट के लिए, Adobe Flash सीरीज के रिप्लेसमेंट के लिए. Select न्यू ऑप्शन इन फाइल टैब, आपको न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है फाइल टैब में फ्रॉम द मेन्यू बार. Now Animate CC workspace. And what is Animate CC workspace? Animate CC has a user-friendly interface comprising a number of tools. Number of tools है जो create करते हैं animations and graphics. So the main screen is known as application screen. Main screen को क्या कहते हैं हम, application screen कहते हैं. So some components of Animate CC screen are given described below. These are your this is your application bar, this is your properties panel, this is your stage. This is your tool panel and this is your timeline. Now what is application bar? This is presented at top of the Animate screen. Animate screen के top पे present होता है. It contains all the commands. सारी commands होती हैं and menus होते हैं जो required होते हैं work करने के लिए Animate CC program में. So what is stage? This is the area available for the users to work. वो area होता है जो available होता है users के लिए work करने के लिए. The user can put any content. यूजर कोई भी कंटेंट, टेक्स्ट, ड्राइंग, ग्राफिक्स, मूवीज इन पुट कर सकता है वर्क एरिया में, वर्क स्पेस एरिया में. द एरिया अराउंड द स्टेज इज कॉल्ड पेज बोर्ड. जो एरिया स्टेज के अराउंड होता है दैट इज नोन एज पेज बोर्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम लाइन. सो टाइम लाइन इज वेयर यू विल मॉडिफाई योर वर्क. जहाँ पे आप मॉडिफाई करोगे अपने वर्क को. इट हैज अ डिवीजन ऑफ फ्रेम्स. डिवीजन ऑफ दैट फ्रेम्स का अरेंज होता है on a numbered grid. Numbered grid पर arranged है ना. So it is used in animation. Use होते हैं animation में क्योंकि इसमें क्या होता है, sequence of images हो गए form of frame पे. For 24 frames होते हैं in 1 second. Now let's talk about play head. To view animation we use this button. It is the red button placed on the timeline. Red button है जो timeline पे placed होता है. It is used to move through the project by dragging the button with the mouse. एक कहाँ पे placed होता है, It is used to place. किससे यूज होता है, प्लेस करेंगे प्रोजेक्ट को ड्रैग करके बटन विद द माउस. नाउ tools panel. So this panel contains a set of tools necessary to work in Animate CC. इस panel में साइज set of tools होते हैं जो किससे इंपॉर्टेंट होता है, आपके Animate CC पे वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. It allows user to select, draw, write, paint, change color, erase or modify objects in the workspace.
इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट को. नाउ प्रॉपर्टीज पैनल, दिस पैनल डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. ये जो पैनल है डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टीज आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की. प्रॉपर्टी पैनल कैन बी इनेबल्ड बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस F3 की. कंट्रोल प्लस F3 की को यूज करके हम प्रॉपर्टी पैनल को इनेबल कर सकते हैं. Now using tools panels, how to use tools panels? It consists of many tools which help in creation and modification of object. जो कि help कर इस पे करते हैं creation और modify करने में object को. So let us have a look at the sum of the tools. Here is the line tool. So this tool is used for making straight line. ये tool किस लिए use होता है? Straight line को बनाने के लिए. In order to use line tool, follow the given step. First आपको select करना है line tool को. Just उस पर click करके the color and the thickness of the line can be changed. जो कलर और थिकनेस होती है लाइन की आप चेंज कर सकते हो लाइन टूल पे प्रॉपर्टीज पैनल में. नाउ देन क्लिक करना है, ड्रैग करना है आपको माउस पॉइंटर को ऑन द स्टेज लाइन बनाने के लिए लाइक दिस. नाउ रेक्टेंगल टूल, वी यूज दिस टूल टू मेक शेप्स. इस टूल को हम यूज करते हैं शेप्स बनाने के. जैसे आपको रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर्स हो गया. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेक अ रेक्टेंगल और स्क्वायर इन एनिमेट सीसी. फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है रेक्टेंगल टूल को, देन आपको modify the rectangle. आपको modify करना है rectangle to be drawn with selection of properties according to your preference such as color. आपकी जो प्रेफरेंस होगी कलर की उसके अकॉर्डिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आपका ड्रॉ हो जाएगा. देन ड्रैग करना आपको माउस पॉइंटर को पार्ट ऑफ स्टेज पे जहाँ पे आपको इंटेंट टू मेक द रेक्टेंगल और स्क्वायर, जहाँ पे आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाना है. ड्रैगिंग until the rectangle or square has been created and release करना है आपको माउस बटन को. You can also draw rectangle. आप draw कर सकते rectangle with rounded corners. Rounded corners के साथ just select करके rectangular primitive tools को and enter करना है corners radius value. Now polystar tool. The polystar tool is used for making shapes. ये किस लिए use the shapes को बनाने के, जैसे आपको polygon और stars हो गया. For the given steps to use, follow the given steps to use this tool. First आपको select करना polystar tool को अपने tools panel पे, then ड्रैग करना है माउस को ओवर द स्टेज टू क्रिएट द पॉलीगन. अपने स्टेज पे ड्रैग करना है माउस को पॉलीगन बनाने के लिए. टू ड्रॉ स्टार सेलेक्ट करना है आपको स्टार इन द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स फ्रॉम ऑप्शन इन प्रॉपर्टीज पैनल एंड देन क्लिक करना है ओके पे. ड्रैग करना है माउस पॉइंटर को ऑन स्टेज एंड ड्रॉ करना है स्टार. यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द स्ट्रोक कलर. आप स्ट्रोक कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिल इन कलर बिफोर मेकिंग अ स्टार ऑफ पॉलीगन. ड्रॉइंग अ कर्व. कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं? कर्व लाइन कैन बी मेड बाय फॉलोइंग गिवन स्टेप्स. ड्रॉ लाइन यूजिंग लाइन टूल. आपको लाइन यूज कर ड्रॉ करने लाइन टूल को यूज करिए. सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल को. मूव करना है पॉइंटर को लाइन पे. द अपीयरेंस ऑफ माउस पॉइंटर वुड चेंज एंड कर्व लाइन वुड अपीयर हो जाएगी. क्लिक करना है, ड्रैग करना है लाइन को कर्व बनाने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेन टूल. सो पेन टूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेट लाइन. ये किस लिए यूज होता है? स्ट्रेट लाइंस को बनाने के लिए और कर्व्स को बनाने के लिए, टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. Follow the given steps to use this tool. First आपको क्लिक करना है पेन टूल, पेन सेलेक्ट करना है एंड क्लिक करना है क्रिएट लाइंस ऑप्शन पे एंड एट द डिफरेंट पॉइंट. देन डबल क्लिक करना है आपको लास्ट पॉइंट टू कंप्लीट द ओपन पाथ. देन इट पाथ इज टू बी क्लोज. अगर पाथ आपको बंद करना है देन प्लेस अ माउस पॉइंटर ऑन द फर्स्ट पॉइंट टू टिल अ स्मॉल सर्कल अपीयर. जब तक आपको स्मॉल सर्कल बनेगा नहीं बिसाइड द माउस, ड्रैग एंड क्लोज करना है आपको पाथ. Now pencil tool. With this tool, freehand lines and shapes can be drawn. इस tool के से आप freehand lines, shapes draw कर सकते हो. ये वर्क करता है एक real pencil की तरह. Now follow the given steps to use pencil tool. पहले आपको select करना है pencil tool, tool panel से, then select करना है drawing option, drawing under option mode. Drawing mode use select करना है option tools में से. To draw straight lines and convert approximation of triangles, circles, rectangles and ovals, select करना है आपको straighten ऑप्शन को select करना है. आपको ovals, circles, rectangles, triangles बनाने हैं. To draw smooth curves lines, smooth curve lines के लिए आपको smooth ऑप्शन को select करना है. To draw freehand lines को बनाने के लिए आपको ink ऑप्शन को select करना है. Click the mouse button डाउन एंड ड्रैग इट. आपको माउस बटन डाउन को क्लिक करना है, ड्रैग करना है, उसको रिलीज करना है माउस बटन को. फिनिश करने के लिए ड्राइंग को द डिजायर ड्राइंग विल अपवे ड्रॉन. जो डिजायर ड्राइंग होगी वो ड्रॉन हो जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन टूल. द सिलेक्शन टूल इन एनिमेट सीटीसी आर यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ सिलेक्शन. ये पर्पस ऑफ सिलेक्शन के लिए यूज होती है ऑफ वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन. इट कैन बी डन इन डिफरेंट वेज. ये डिफरेंट वेज में हो जाती है.
क्लिक एंड सेलेक्ट करना, आपको सिलेक्शन टूल को एंड क्लिक करना है ऑन ऑब्जेक्ट यू वांट टू सेलेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। देन डबल क्लिक करना है आपको फिल शेप पे उसको सिलेक्ट करने के लिए। अ शेप फिल विद कलर्स कैन बी सिलेक्टेड, एक शेप जो कलर से फिल्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगी अलोंग विद बॉर्डर्स विद द यूज ऑफ स्क्वायर सिलेक्शन box. Now let's talk about lasso tool. The lasso tool is used for selection of shapes or areas with irregularity. So ये lasso tool use होता है selection of shapes के लिए, areas में जो irregularity से होता है। ये it can be used in free form manner. Free form manner में use होती है। Follow the given steps to use this tool. First आपको click करना है, select करना है lasso tool को from tool panel. The appearance of the mouse changes. जो appearance of mouse change हो जाएगी एक बार में जब ये place हो जाएगा stage area पे। Then drag करना है माउस को राउंड एरिया, अराउंड द एरिया यू वांट टू सेलेक्ट, दिस एरिया आपको सिलेक्ट करना है। आप नोटिस करोगे कि माउस के एक लाइन छोड़ेगा, जैसे जैसे मूव करेगा आपको ड्रैग करते रहना माउस को जब तक वो दोनों एंड्स पे एक लाइन मीट नहीं कर जाती। रिलीज करना है आपको बटन को, द एरिया विद इन द फ्री फॉर्म लाइन विल बी सिलेक्टेड, जो एरिया होगा फ्री फॉर्म लाइन वो सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब सिलेक्शन टूल. So selection of different node on all nodes of a created object can be done. ये created object में हो सकता है यूज करके सब सिलेक्शन टूल को प्रेजेंट है जो आपके टूल्स पैनल में। सो फॉलो करना आपको गिवन से, फर्स्ट आपको क्लिक करना है सब सिलेक्शन टूल उसको सिलेक्ट करने के लिए, देन क्लिक करना आउटलाइन पे ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। द नोड चेंज करेगा आपको आउटलाइन में टू फिल्ड इन डॉट्स, डॉट से फिल हो जाएगा अपॉन बीइंग सिलेक्टेड। आप क्रिएट कर सकते हो एक पाथ अलोंग टू योर रिक्वायरमेंट बाय ड्रैगिंग एंड क्रिएट सेलेक्टेड मोड। कलरिंग टूल्स इन एनिमेट सीसी, कैसे कलर करते हैं टूल्स का एनिमेट सीसी एंड ब्रश टूल। द ब्रश टूल इज यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग विद अ रैन आर अवेलेबल इन एनिमेट सीसी। जो आप ब्रश टूल से क्रिएट कर सकते हो ड्राइंग जो अवेलेबल आपके एनिमेट सीसी में। फॉलो करना है आपको गिवन स्टेप्स यूज करने के लिए ब्रश टूल को। फर्स्ट आपको क्लिक करना है ब्रश टूल ऑप्शन आपके टूल्स पैनल में, देन चूज करना आपको ब्रश शेप, ब्रश साइज एंड ब्रश मोड को। देन फ्रॉम द ऑप्शन बाय ड्रैगिंग माउस इन वर्कस्पेस एरिया आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ इंक बॉटल टूल, दिस टूल इज यूज्ड टू अप्लाई स्ट्रोक प्रॉपर्टीज टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। किससे यूज होता है? स्ट्रोक प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। दिस टूल कैन ऑल्सो चेंज कलर, आप कलर को भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, लाइन्स ड्रॉन अलॉन्ग विद द आउटलाइंस। फॉलो करना है आपको गिवन स्टेप्स को तो यूज करने के लिए इंक बॉर्डर टूल को चूज करना है आपको इंक बॉर्डर टूल फ्रॉम द टूल पैनल। देन सेलेक्ट करना है स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक हाइट है, स्ट्रोक स्टाइल अपने प्रॉपर्टीज पैनल में। देन सेलेक्ट करना ऑब्जेक्ट विच हु स्ट्रोक प्रॉपर्टीज यू वांट टू चेंज, इसके स्ट्रोक प्रॉपर्टीज को आपको चेंज करना है। द न्यू स्ट्रोक प्रॉपर्टीज विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो न्यू स्ट्रोक प्रॉपर्टीज है वो आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगी। नाउ पेंट बकेट टूल, This tool is used to fill colors in any closed shape. ये टूल यूज होता है फिल कलर्स फिल करने के लिए किसी भी क्लोज शेप में। इट गिव्स यू चॉइस, आपको चॉइस देता है सेलेक्ट करने के लिए वाइड रेंज ऑफ कलर्स को। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू यूज पेंट बकेट टूल। फर्स्ट आपको चूज करना है पेंट बकेट टूल का, क्लिक करना है आपको पेंट बकेट बॉक्स पे प्रॉपर्टीज पैनल में और कलर बॉक्स अपीयर हो जाएगा। चूज करना है आपको कलर को फिल करने के लिए, देन क्लिक करना है अपने ऑब्जेक्ट पे इन विच you want to fill color, जिसमें आपको कलर्स फिल करने हैं। the chosen colors will be filled in the object, जो chosen colors होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएंगे। now let's talk about eraser tool. this tool is used to erase different lines. ये tool use होता है different lines को erase करने के लिए and objects को in the stage area. in order to use this tool follow the given step. first आपको क्लिक करना है, select करना है eraser tool को from the tools panel. then upon selection of eraser tool, a black fill dot at the end of tools panel. by clicking on it, you can select shape and size of the eraser. आप इस पे क्लिक करके शेप और साइज सेलेक्ट कर सकते हो इरेजर का। Now क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने इरेजर को ओवर द एरिया ऑफ का ऑब्जेक्ट विच नीड टू बी इरेज, जो आपको इरेज करना है। You can make use of different erasers modes. आप डिफरेंट इरेजर मोड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे आपका इरेजर नॉर्मल हो गया, इरेज फिल हो गया, इरेज लाइन्स हो गया, इरेज सिलेक्टेड फिल्स हो गया, इरेज इनसाइड हो गया। डू यू नो एनिमेट सीसी हैज शॉर्टकट्स फॉर ईच टूल। एनिमेट सीसी में शॉर्टकट्स होते हैं हर टूल के लिए, लाइक रेक्टेंगुलर टूल, आर लाइन टूल एंड ओवल टूल, ओ पेन टूल, पी सिलेक्शन टूल, वी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट टूल। The text tool allows users to type text. यूजर को अलाउ करता है टेक्स्ट टाइप करने के लिए अपने स्टेज एरिया में ऑफ एनिमेट सीसी। फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज टेक्स्ट टूल एनिमेट सीसी। फर्स्ट आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है टेक्स्ट टूल को अपने टूल पैनल में,
देन सेलेक्ट करना है मॉडिफिकेशन, जैसे आपका फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट कलर अलाइनमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। देन आपको क्लिक करना है ए यहाँ पे ऑफ द स्टेज एंड स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग। द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी मॉडिफाइड, जो टेक्स्ट बॉक्स होगा मॉडिफाई हो जाएगा सिमिलर में ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिएशन ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी। न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं एनिमेट सीसी में? फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन एनिमेट सीसी। फर्स्ट आपको क्लिक करना है फाइल टैब पे एंड देन सेलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू जो आपके सामने अपीयर होगा। देन आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, डायलॉग बॉक्स विद न्यू डॉक्यूमेंट टाइटल विल अपीयर। इन द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करना है आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को। एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को सेलेक्ट करने के बाद एक देन क्लिक कर देना है आपको ओके बटन पे। ओके पे क्लिक करने के बाद मॉडिफिकेशन कैन बी मेड, मॉडिफिकेशन हो सकती है आपके स्टेज पे। फॉर स्टेज साइज से ही चेंज कर सकते हैं, स्टेज कलर एंड फ्रेम रेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे, in document option in modify tab. Now let's talk about frame by frame technique for animation. Frames are the base of any animation. Frames क्या base होता है किसी भी animation की. So depicting each segment of time and movement, the numbers of frame required in the animation are decided. जो numbers of frames required होते हैं animation वो decide हो जाते हैं and the content on each frame is changed. So the numbers of frames in a movie and the speed at which they are played back together determine करता है कि movie overall length को. Let's discuss what are frames. So frames क्या होता है? In animate CC we work with frames. हम frames पे work करते हैं on timeline to organize and control the content of an animate document. We place frames in the timeline. हम place करते हैं frames को timeline को in the same order in which we want to objects in the entire animate document to appear. जिस इसी order में place करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि object appear हो आपके एनिमेट डॉक्यूमेंट में। Now let's talk about keyframes. A keyframe is a frame where a new symbol appear in the timeline. जहाँ पे एक new symbol appear होता है आपकी timeline में, वो एरिया होता है keyframe. All the frames required for the animation are defined as keyframes. जितने frames required होते हैं animation के लिए उनको हम keyframes कहते हैं. And each keyframe will have a different image. हर keyframe में क्या होता है? Different image होती है. A keyframe or can also be a frame that includes order scripts. इसमें वो frame हो सकता है जिसमें order script, action scripts होती है, codes हो, action script codes होते हैं control करने के some aspects of a document. Using keyframe we can set up position. हम position set करते हैं, anchor point set करते हैं, action, comments and so on. Now let's talk about animating an object. To animate an object, follow the given steps. First आपको draw आप करना है कोई भी object जो आपको चाहिए अपने animated by default. You are in the first keyframe of layer 1. Now in timeline select करना आपको section frame को. Then bring out the section frame by selecting the keyframe. आपको bring out करना selection frame को select करके keyframe option को अपनी timeline पे अंदर insert tab. Then make slight changes, थोड़ी changes करना position of the object using selection tool. Change its fill in color with borders, colors and also size. The change should be incremental. change आपका incremental होना चाहिए. They build up on the contents of previous keyframe. Select करना आपको third frame by clicking insert timeline keyframe. ये आपके ऐड कर देगा another frame while saving the old frame. Then shift करना आपको object slightly change करना है, उसकी color को and shape को insert कर देना है frame में. Keep repeating the previous steps till you have completed 15 frames. Previous steps को आपको repeat करना है जब तक आप 15 frames को complete ना कर लो. So play your animation by going to control tab and select करना आपको test movie को select करके आप play कर सकते हो अपनी animation. A file in animate CC is saved with the extension of .fla. To save a file, click करना आपको save option पे ना file tab. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.